24 student now. 25. Okay. सर ये तो हो गया है ना? सर ये हो गया था। हाँ हो गया, मैं जस्ट उसको ब्रीफ कर रहा हूँ। डाउट्स उसके कुछ लेने हैं। In stoichiometry, we had seen three methods. First one is mole method. Mole method में हमने exactly क्या कहा था? रिएक्शन को बैलेंस किया सबसे पहले। Just a minute. चलो so हम थे stoichiometry mole method. Let's say we have this balance reaction A plus B giving C plus D. Small ABCD are their stoichiometric coefficient in balance reaction. Moles of A reacted by coefficient, moles of B reacted by coefficient, C produced by coefficient, D produced by coefficient. So these are the moles reacted and moles produced. Clear? कितने moles react किए हैं, कितने moles produce हुए हैं, by their coefficient are always equal. This is mole method. Then second method is factorial method. In case of factor level method, when we have such kind of reaction, A is giving B plus C, then B is giving D, कुछ ऐसे sequential reaction है, moles of B equal to moles of A, coefficient of product by reactant, coefficient of product by reactant, उस product का coefficient लेना है जो next reaction में use आ रहा है, yeah? If percentage efficiency, percentage yield is given, तो उसका भी हम multiply कर देंगे यहाँ पर, right? तो percentage yield का multiply होता चला जाएगा. ये था factor level method. Third one, POAC, principle of atomic conservation. Let's say if we have such kind of reaction, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो FeO plus O2 giving Fe2O3. If you want to apply POAC on oxygen, so moles of FeO into 1 plus moles of O2 into 2 equal to moles of Fe2O3 into 3. So number of moles of reactant into number of oxygen atom per molecule. यहाँ कोफिशिएंट दिया भी होगा ना, इसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बैलेंस दे भी रखा है तो उसका यूज नहीं करना. So 1 oxygen atom per molecule, 2 oxygen atom per molecule, 3 oxygen atom per molecule, POAC. Then हमने देखा concept of limiting reagent. Whenever 2 or more reactants are given in the question, so their initial amounts are given. So first we need to determine limiting reagent. वो decide करेगा कितना दूसरा reactant react करेगा, कितना product produce होगा. Limiting reagent. Clear? अब limiting reagent कैसे निकालना होता है, उसके लिए balancing required होती है. Initial moles of the reactant when divided by stoichiometric coefficient, moles by stoichiometric coefficient, the reactant which has smallest value for this will be the limiting reagent. वो reactant जिसका सबसे छोटा होगा moles by coefficient का, वो limiting reactant कितना react करेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा. एक बार limiting reagent आ गया तो हम मोल मेथड लगा देंगे और सॉल्व करेंगे. क्लियर? इतना हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. इज दैट ओके? यस Yes, कुछ बोलना है? फैक्टर लेवल मेथड दो प्रोडक्ट और दो रिएक्टेंट के साथ दिखा सकते हो? देखो चलो
मुझे मोल्स ऑफ G को लेट से इसके मोल्स को रिलेट करना है A के मोल्स, क्लियर? सो मोल्स ऑफ A इनटू कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है, तो प्रोडक्ट 2 अपॉन रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट जो यहाँ पे लिया है 2/1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन सा हम ले रहे हैं G, तो G का कोएफिशिएंट 7 अपॉन 3. इज दैट ओके? ओके सर। वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लेना है जो हम नेक्स्ट स्टेशन में यूज कर रहे हैं. होमवर्क कहां से था? होमवर्क कहां से था? एक्सरसाइज बोलो जल्दी. सर एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 दोनों पार्ट से था, पार्ट 1 पार्ट 2. यस सर, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABC. चलो कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है ना अब तक? नो सर. We are starting from exercise 1 part 1. You can type doubts of exercise 1 part 1 in chat box. तुम्हें ऐसे डाउट मेंशन करना है A2, A3, B2, B1. Exercise 1 part 1 mole concept. Okay. C5. शोन क्या लिखा है? सेक्शन A2. सर वो हो गया क्लियर। हाँ जयवर्धन, C5 तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्या कर रहे हो, किस दुनिया में हो तुम? सर वो पार्ट 2 का है. तो पार्ट 1 लिखा है ना मंदार. B2 पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है? पार्ट 1 का ही डाउट लिखना है अभी. किसका है मंदार ये? सर पार्ट 1 का ही. B2. A compound has hemoglobin like structure. It has one iron atom. It contains 4.6% of iron. Determine its molecular mass. चलो करता हूं मैं इसे बोर्ड पर. Percentage of iron is given 4.6. Percentage of iron is weight of iron upon total weight into 100. ये definition होगी. Hemoglobin like structure compound has one iron atom per molecule. एक molecule में one iron atom है. चलो तो एक molecule में जितने भी iron atom है उसका mass 1 into 56 unit mass होता है iron का upon total mass of the molecule into 100, 4.6. मंदार. यस सर. B2 के बाद
B3 from Pranav. A compound contain 25% hydrogen and 75% carbon by mass. Empirical formula. So carbon, hydrogen, 75%, 25%. So 75 by atomic mass, 25 by atomic mass. 25. Step 1. Divide the percentage by mass by their respective atomic masses. Now divide this number by smallest of them. ये 1 आया, 25 6.25 से divide करोगे 4 आएगा. Carbon 1, hydrogen 4. Answer is CH4. Is that okay, Pranav? Empirical Yes, formula. Step by step गए और solve कर लिया. Right? yes, sir. हाँ बोलो, कुछ बोलना है? सर वो रिएक्शंस इन सीक्वेंस एंड और रिएक्शन इन पैरेलल में क्या डिफरेंस है? तूने C लिया. C can react with half O2 to give CO. C can react 1 O2 to give CO2. कार्बन सेम टाइम पे CO भी बना रहा है, CO2 भी बना रहा है, पैरेलल रिएक्शन. क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. KClO4 हीट किया, KClO3 प्लस O2 बना. KClO3 फर्दर हीट करोगे KCl प्लस O2 बनेगा. ये हो गया सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन. पहले प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट ने फर्दर अनदर प्रोडक्ट बनाया. राइट? पर मतलब वो जो आपने ऊपर लिखा है C half O2 वो एक साथ साइमल्टेनियस हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि पहले CO बन रहा है फिर CO से CO2 बन रहा है. दोनों एक साथ बन रहे हैं C से. यहाँ पे पहले ये बनेगा फिर इससे ये बनेगा. सर तो फिर वो कार्बन के कुछ मोल्स उसमें यूज हो रहे हैं या अलग से कार्बन के मतलब लाए वो? जितने भी कार्बन के मोल्स रिएक्ट किए, कुछ यहाँ से रिएक्ट करके ये बनाए, कुछ यहाँ से रिएक्ट करके ये बन गया. ये एग्जांपल लिया है जस्ट ना मैंने. ठीक है? यस. C1. Calculate the residue obtained on strong heating of 2.76 gram of Ag2CO3. लिखो अपने लेक्चर नोट्स में, रेसिड्यू solid remaining after the reaction is called residue. Residue मतलब जो बच गया है, solid remaining after the reaction is called residue. सर Part. आप ये लेक्चर अपलोड कर सकते हो? मेरा इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है आज. मैं नाम बताओ अपना. ईशान मोहन सर. अपलोड तो करूंगा ही, बट ट्राई करो, यदि कर सकते हो तो ठीक है. हाँ सर, नहीं Rejoin तो करके कर रहा हूँ. देखो. कर दूंगा, अपलोड तो करना ही है मुझे आज. वैसे मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने वाला हूँ. Ag2CO3 की Ag plus CO2 plus O2. ये रिएक्शन दे रखा है 2.76 ग्राम. पार्थ मुझे ये बताओ, सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसमें से कौन से गैसेस दिख रहे हैं तीनों में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. CO2 भी गैस, ये भी सिस्टम से चला जाएगा. O2 गैस, ये भी वेपराइज हो जाएगा. एरो मतलब गैसीफाई हो गया, सिस्टम से बाहर चले गए. बचा क्या रेसिड्यू में? सिल्वर सॉलिड. तो तुझे इनडायरेक्टली इसका वेट पूछा है. So moles of this 2.76 upon molar weight. Molar weight निकालना इसका 276 आएगा. Upon coefficient. Moles of Ag, weight of Ag upon molar weight. Ag का एटॉमिक मास बहुत कॉमन है, याद रखना है 108. आयरन का 56, Ag का 108 by coefficient. So weight by molar weight by coefficient. Weight by molar weight by coefficient. So इसके लिए सॉल्व कर लेना. जो भी वेट आएगा Ag का वो रेसिड्यू. क्लियर? यस. कोई डाउट यहां तक? Is that okay? बोलो यस नो यार. Yes, sir. यस. Yes. अरे पार्ट. यस सर.
पार्ट 2 पे चले हम। यस सर। करता हूं पहले पार्ट 2, फिर तुम टाइप करना डाउट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। You can type your doubts in chat box fast. Exercise 1 part 2. कितने बच्चों ने होमवर्क किया है कंप्लीट? रेज योर हैंड। बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। जितने भी बच्चों ने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 1 2 सेक्शन एबीसी, हैंड रेज करो जल्दी से। ओके, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ, होमवर्क लिमिटेड दिया जा रहा है, तुम करते चले जाओ साथ में। इवन आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क नहीं किया था, मैं क्लास में ही ट्राई करूंगा कि प्रैक्टिस कराऊं, बट थोड़ा सा तुम भी अपने एंड से एफर्ट डालो। क्लियर? ओके, काफी कुछ डाउट्स आए हैं। C5, C5, C3, C6, C3, C5, C6 सेक्शन सी के पहले देख लेते हैं हम। C3, 1.5 mole of oxygen combined with aluminium to form Al2O3. The weight of aluminium used in the reaction is। अच्छे से सुन लेना, क्योंकि अभी हम फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो मैं थोड़ा सा समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं भी अटेंड किया ना, क्वेश्चन पढ़ लेना। अच्छा, अब ऐसे बच्चे हैंड रेज करो जिनके पास बुकलेट नहीं है मोल कॉन्सेप्ट का। ऐसे बच्चे हैंड रेज करो जिनके पास मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट नहीं है, ये वाला बुकलेट नहीं है जिनके पास। शोनक, लीजा, स्मिरा, पार्थ, क्यों नहीं है तुम लोगों के पास? सर जब सेंटर विजिट करेंगे तो फिर ले आएंगे। बाकी के बच्चे भी सब सेंटर विजिट करो, लेकर आओ। और कुछ तो पिक्चर्स जो आज करेंगे क्वेश्चन, तो फिर मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ, कर दूंगा अभी। या करूं पहले, क्योंकि तुम्हारे पास तो क्वेश्चन भी नहीं है और ना ही तुम में से किसी का मैसेज आया मेरे पास कि सर ये भेज दीजिए। सर आपने इसके सेंड किए थे पिक्चर्स। सर क्या कर रखा है सेंड मैंने इसका एक्सरसाइज? एक ABC सेक्शन आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के सेंड कर लिया। लास्ट ठीक क्लास है में फिर। हमने आपको बोला। ठीक है। C3, चलो रिएक्शन को बैलेंस कर दिया।
1.5 moles of oxygen combined with aluminium to form Al2O3. The weight of aluminium used in the reaction. So moles of aluminium by coefficient, moles of oxygen by coefficient. Moles of aluminium को लिखा weight of aluminium by molar mass upon coefficient. So weight of aluminium by 27 upon coefficient as it is. Moles of O2 दे रखा है क्वेश्चन में 1.5 by 3. Weight of aluminium के लिए solve कर लेते हैं हम. ये है 3/2. 1.5 into 4 into 27 upon 3. This 27 and 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ये बचा 6/3. 2 बच गया. 54 ग्राम इज द आंसर. है कोई ऑप्शन ऐसा? समझ में आया? जिसका भी डाउट था C3 मोल sir. मेथड बैलेंस कर पा रहे हैं. मोल मेथड लगा दिया हमने. सर मुझे एन कैसे लिखना था उसमें डाउट था, वो क्लियर हो गया. C5 mass conservation. The total mass of the reactant reacted is exactly equal to the total mass of the product produced. 100 gram reactant react किया है without any hesitation, without any calculation. 100 gram of the product will produce. बिना solve किए आंसर 100 gram. आया जयवर्धन, सिद्धेश, समझ में? C5 प्रणव. Yes, sir. Yes, sir. रिएक्ट किया है उतना प्रोडक्ट बनेगा. 100 ग्राम गिव 100 ग्राम. C6 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब जिनकी वैलेंसी 2 होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, वो सब कुछ. रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू गिव नाइट्राइड. नाइट्राइड होता है जिसमें नाइट्रोजन -3 में होता है, उसे नाइट्राइड बोलते हैं. सो नाइट्रोजन -3, ये +2 into 3 +6 -3 into 2 6. मतलब नाइट्रोजन में जिसमें 3 वैलेंसी शो करता है उसे नाइट्राइड बोलते हैं. सो मेटल प्लस नाइट्रोजन गिव मेटल नाइट्राइड. चलो क्या दिया यहाँ पर? 12 ग्राम कैन प्रोड्यूस 14.8 ग्राम. तो इसका एटॉमिक मास बताना. क्वेश्चन क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें इसका एटॉमिक मास बताना है. चलो ये 12 ग्राम, ये 14.8, क्या इसका मास बता सकते हो क्या तुम मास कंजर्वेशन से? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. कितना होगा? 2.8 ग्राम. मोल मेथड लगा देते हैं बैलेंस करके. 3 मेटल 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. सो मोल्स ऑफ मेटल बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ N2 बाय कोफिशिएंट. सो मेटल के मोल्स 12 ग्राम अपॉन मोलार वेट, number of moles weight upon molar weight that we have to find out upon coefficient. Weight 2.8 gram upon molar weight 28 for N2 by coefficient. M के लिए solve कर लेते हैं. 12 into 28. Sorry. सर वीडियो हैंग हो गया है. नहीं हुआ है. Video. Everything is okay? Audio and video, anyone? Yes, sir. Yes sir. क्योंकि मेरे इन पे भी सही दिखा रहा है वो. रीजॉइन कर लो जिसको प्रॉब्लम है, मतलब कुछ हैंग हुआ हो तो. सर C6 कौन सा एक्सरसाइज पार्ट 2 का? हाँ हम पार्ट 2 पे है ना, ये सारे पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं. सर लेकिन C6 हमारी इसमें अलग है, मतलब पोटेशियम क्लोरेट का है 11.2 लीटर. और हमारे पास कौन सा बुकलेट है? मोल कंसेप्ट का. सेंटर से कलेक्ट किया है. नो सर वही है. हाँ मेरा भी वही है जो नया बुकलेट है. कौन सा पढ़ रहा है? C6 ये वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? देख कुछ और है क्या? सर मेरा तेरे पास? अलग है. हाँ सर मेरा अलग है. बुकलेट कब कलेक्ट किया तूने? सर जब सेंटर पे आया था ना, मतलब आपने बोला था तब कर लिया था कलेक्ट. या तो बुकलेट तो वही है जो सेंटर पे, फिर तूने वही कलेक्ट किया जो नया आया है. तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए. पिक्चर भेज मुझे एक बार.
मैंने ग्रुप पे भी वैसे शेयर किया था, तू तेरा बुकलेट का पिक्चर है सेक्शन सी का, मुझे पता लगेगा। यस सर, एक मिनट। क्या और किसी के बुकलेट में भी अलग है क्या? नो सर। चलो इसके बाद फिर था B3 and B4. B3, a compound have 8% sulfur by mass, its least molecular mass. B3 part 2. %8 sulfur by mass. So weight of sulfur upon total weight into 100. 8% दे रखा है सल्फर का मास, परसेंटेज बाय वेट, वेट ऑफ सल्फर अपॉन टोटल वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है। सो ऊपर सल्फर का मिनिमम ले लेते हैं 32, सिर्फ एक सल्फर एटम होगा तो मिनिमम आ जाएगा 32 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 इक्वल टू 8। एम हो गया 400। B4 में ये दे रखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 69.98 and that molecule contain 21 carbon atoms per molecule. So mass of carbon 21 atoms, एक होता है 12, 21 का हो गया 21 into 12 upon molar mass into 100। क्या B3 B4 क्लियर है? प्रणव का B3 था, B3 क्लियर प्रणव? यस सर। मंदार B4? यस सर। सर मैंने आपको फोटो भेजा है, आप देखो तो एक। तुम्हारे पास या तो नेक्स्ट लास्ट ईयर का बुकलेट होगा। पूरा चेंज हुआ है यार, तुम्हारा तो सेक्शन डी भी डिफरेंट है। काफी कुछ चेंज हुआ है, मतलब मेरे पास बुकलेट है तो तुम्हें सेंटर से ही मिला है बुकलेट? हाँ सर, मुझे सेंटर से ही मिला। चेंज करवा लेना, क्वेश्चन नंबर सारे चेंज है इसमें, ठीक है? यस सर। काफी कुछ चेंज दिख रहा है इसमें तो। सर तो फिर मुझे जितने भी मॉड्यूल्स मिले वो सब अलग ही रहेंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा, मोल का तो सिंगल मॉड्यूल था, सिंगल आया था छोटा सा, मतलब एक ही होगा, वो एक गलती से चला गया होगा, ऐसा हुआ होगा वो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो आज आप क्वेश्चंस करवाने वाले हो तो उसमें आप वो रिएक्शन से पैरेलल के आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवा सकते हो? मतलब पैरेलल पे कैसे, कहाँ तुझे दिख गया पैरेलल पे? मतलब क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगा, क्योंकि सीक्वेंशियल रिएक्शन तो हमने फैक्टर लेवल पूरा सीक्वेंशियल पे किया ही है, और पैरेलल पे कोई रिएक्शन आएगा तो डेफिनेटली करेंगे, मतलब मिक्सचर वाले में आएगा ही सही। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बुकलेट के करेंगे, उसमें आ जाएगा कुछ, उसमें से अलग से कुछ भी नहीं है, जस्ट इंटरप्रेट कैसे करते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखना है। ओके यहीं तक था ना होमवर्क? यस हमें अभी करना है E4 से लेके E9 तक, सेक्शन ई पार्ट 2, E4 टू E9 सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सर, आप तो पिक्चर सेंड कीजिए। भेज देता हूँ पिक्चर। E4 टू E9 अभी अटेम्प्ट करना है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में पिक्चर भी सेंड कर रहा हूँ, और अभी हम क्लास में डिस्कस करेंगे।
जैसे E4 पैरेलल रिएक्शन पे बेस्ड है। रिएक्शन में तुम्हें बता देता हूँ, ट्राई तुम करना फिर। क्वेश्चन पढ़ लिया है सभी ने? E4 25.4 ग्राम of iodine, 14.2 gram of chlorine are made to react to yield a mixture of ICl and ICl3। जहां में मिक्सचर आता है ना, यहाँ पर देखो I2 और Cl2 रिएक्ट करें, E4 I2 and Cl2 are reacting and we are getting to different product। यदि तुमने ऐसा लिख दिया ICl and ICl3, तो जो क्वेश्चन पूछा है तुमने वहीं पे वो क्वेश्चन को खत्म कर दिया। हमने जो है वो बन रहा है, हमने रेशो पहले लिख के फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं करना है। दिस इज पैरेलल रिएक्शन। मिक्सचर कुछ मिक्सचर मिल रहा है हमें, मिक्सचर मतलब रेशो इज नॉट फिक्स, तो यू हैव डिफरेंट रिएक्शन। दोनों रिएक्टेंट्स है में, एक बार बना ICl और दूसरी बार बना ICl3। दिस इज द रिएक्शंस टू सेपरेट रिएक्शंस। तुम एक ही रिएक्शन में लिख दोगे तो पैरेलल रिएक्शन का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। कुछ पार्ट I2Cl2 का ये दे रहा है, कुछ पार्ट ये दे रहा है। सेम रिएक्शन में लिखने में हो जाएगा कि हमने फिक्स कर दिया कि दोनों मिलके ICl और ICl3 बना रहे हैं इन द फिक्स्ड रेशियो व्हिच इज नॉट फिक्स्ड एक्चुअली। तो ये पैरेलल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। चलो ट्राई करो अभी। अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस करना है, मोल मेथड लगाना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम ट्राई करो फिर मैं बताऊं। All these are like good questions. चलो देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आंसर तुम एकदम से कर पाओ, उसे सॉल्व कर पाओ। समझो, स्टिल मैंने टाइम दिया था कि तुम थोड़ा सा सोचो पहले। I2 plus Cl2 गिविंग ICl, बैलेंस किया, 2 3 बैलेंस हो गया। अब हमें 25.4 ग्राम आयोडीन दे रखा है, 14.2 ग्राम क्लोरीन दे रखा है, और मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। मोल्स ऑफ I2 निकालो सबसे पहले। 25.4 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, तो I2 का हो गया 254, मतलब 0.1 मोल। मोल्स ऑफ क्लोरीन चेक करो, 14.2 अपॉन 71, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.2 मोल। क्लियर? ओके, हम जितने कम वेरिएबल में डील कर सकते हैं बेटर उतने कम वेरिएबल में डील करें। 0.1 मोल है इसका I2 का, एज्यूम किया x मोल रिएक्ट कर रहा है फर्स्ट रिएक्शन से, इसका x करेगा 1:1:2, तो इसका 2x बनेगा। x:2x:2x, 1:1:2 बाय मोल मेथड, स्टोइचियोमेट्री।
बचा कितना 0.1 में से x रिएक्ट कर गया फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, तो बच गया 0.1 माइनस x। जो सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट करेगा 0.1 minus x can react with 3 times of 0.1 minus x to produce 2 times of 0.1 minus x. So stoichiometric ratio 1:3:2. 0.1 minus x is to 3 times of 0.1 minus x is to 2 times of 0.1 minus x. क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। कम वेरिएबल लेते हैं उतना कैलकुलेशन इजी हो जाता है हमारे लिए। ये भी कर सकता था इसको x फिर इसको y फिर x plus y 0.1 रखता और वही एट द एंड आता। क्लियर? चलो क्लोरीन यहां से रिएक्ट किया x, यहां से रिएक्ट किया इतना। टोटल मोल्स क्लोरीन के कितने रिएक्ट कर रहे हैं? x plus 3 times of 0.1 minus x which is given 0.2। हमें क्लोरीन के मोल्स पता है, इसको ऐड करके 0.2 से इक्वेट करते हैं, तो सॉल्व करने पे x आ जाता है 0.05। क्लियर? 0.3 minus 2x equal to 0.2, 2x equal to 0.1, x is 0.1 by 2, 0.05। अब हमें चाहिए इसके मोल्स, तो यहाँ पे 2 times of 0.05, 0.1, यहाँ पे 0.05 रखो, तो 0.05 0.1 में से माइनस करोगे 0.05, ये भी आ जाएगा 2 times of 1 minus 0.05, 0.1। ये कोई ऑप्शन ऐसा जिसमें ICl और ICl3 दोनों के मोल्स 0.1 दे रखे हैं? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? आंचल, अनिरुद्ध, अर्णव, ईशानी? यस सर। यस सर। यू कैन टेक योर टाइम, 2-3-4 मिनट्स तुम लो, समझो इसको, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था, सोचना है कैसे डील कर रहे हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स हम आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट? मतलब ये बोलोगे ना तो ये नीट प्लस लेवल का क्वेश्चन है, IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें ऐसा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आंसर बता देंगे, क्योंकि अप्रोच मैटर करता है। तुम एक्स वाई जेड में डील करने लग गए तो फिर तो वो कैलकुलेशन आधे घंटे तक भी चलेगा, पता नहीं चलेगा कब तक जा रहे हैं। सर यस सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरा आंसर गलत आ गया XYZ। नहीं देखो आंसर का तो मैटर ही नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ अप्रोच तुम ध्यान रखो, इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा करने नहीं दिया था, इसको मैंने ही सॉल्व किया था, सिर्फ क्रॉस सोचने का मौका जरूर दिया था। ये क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है, तुम किसी अलग तरीके से अप्रोच करने जाओगे ना तो एक तो बहुत लेंथी होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच व्हेनेवर पैरेलल रिएक्शंस आर गिवन। तो हम ऐसे डील करें, टोटल मोल्स निकाले, इसको x को 0.1 माइनस x के टर्म में Cl2 निकाल लिया हमने, और टोटल मोल्स Cl2 के ऐड कर दिए, वो दे रखे थे 0.2, उससे x आ गया। हमें पूछा ICl और ICl3 के कितने मोल्स बन रहे हैं, तो x का वैल्यू रखा यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों का आंसर निकाला। सो पहले मोल्स ऑफ I2 और मोल्स ऑफ Cl2 निकाला, दो अलग अलग रिएक्शंस लिखना वो समझ में आना चाहिए, क्लियर? और फिर एक ही वेरिएबल में मैंने सब कुछ डील किया, मोल मेथड से रिलेट किया, 1:1:2, x to x, 1:3:2, 0.1 minus x, 3 times of this, 2 times of this. यस सर। E5 is almost similar question जैसा हमने E4 किया है, ठीक है? ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है वैसा ही। तो E5 तुम्हें ट्राई करना और बनाना भी है, वो क्वेश्चन बनना चाहिए। प्राप्ति, मनोली, is that okay? नमिशा? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारे पेपर में सिर्फ वो 2 क्वेश्चंस के अलावा और किसी सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं थे ना?
नो सर। नो सर। ठीक है। थर्टी थ्री एंड 35 थे ना? सर यस। सर लास्ट क्लास का आप वीडियो इस पे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे? जो लास्ट पार्ट था प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का, वो नहीं समझा। लास्ट क्लास का वो लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी, नहीं है क्या? सर मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं, बट मैं देख लेता हूँ यूट्यूब पे। हाँ मतलब अपलोड कर देता हूँ मैं। 16 को लेक्चर था, 16 का वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। उसके पहले 13 को था, 13 वाला भी अपलोडेड है। सर मेरा एक डाउट है। यस। सर हमने वो जो E4 में जब क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स निकाला था तो हमें 0.2 निकला था ना आंसर। तो फिर उसमें आपने उसमें 3 into 0.1 minus x को किया है। See, here I am using mole method, stoichiometry. 1 mole can react with 1 mole to give 2 moles. So if x mole of I2 is reacting, then x mole of Cl2 will react to give 2x moles of this. 1 can react with 3 to produce 2. 0.1 minus x, if I2 is reacting, then 3 times of 0.1 minus x Cl2 will react, and 2 times of 0.1 minus x ICl3 is produced. As of now, I have not used this information moles of I2, sorry Cl2. अभी मैंने stoichiometry यूज किया है। See, I have to use 2 equation to solve it. मुझे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का तो रिक्वायरमेंट है ही सही। तो एक तो मैंने stoichiometry से रिलेट किया, सेकंड I am using moles of Cl2. Total moles of Cl2 is 0.2. So Cl2 is reacting from first reaction, Cl2 is reacting from second reaction. If we add both of them 1 plus 2, we get the total moles of Cl, which is 0.2. Right? Yes sir, thank you. बताओ मैं E5 अभी। सर 1 मिनट।
बताओ अभी मैम। यस सर। किसी का आंसर आया वैसे? यस सर। चलो Yes, अच्छी बात है। sir. ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है ये। If 5 watt weight of P4O6 and P4O10 will be produced by the combustion of 31 gram of P4 in 32 gram of oxygen, leaving no P4 and O2. पिछली बार दिया था react completely, इस बार लिखा है leaving no P4 and O2, मतलब 100% react किया है। Just language is different, but both are reacting 100%. Moles of P4 31 ग्राम, इसका मोलार मास होगा 31 into 4, 0.25 मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ O2 32 डिवाइडेड बाय 32, इसके 1 मोल आ गए। जैसे हमने यहाँ मोल्स निकाले, इसके भी मोल्स निकाल लिए हमने। रिएक्शन लिखो, P4 प्लस O2 पहला रिएक्शन, P4O6, P4 प्लस O2 सेकेंड रिएक्शन, P4O10। क्या रिएक्शन क्लियर है सभी को? Is that okay? यस सर। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी सबको क्लियर नहीं है क्या? Clear ईशानी, है, sir. अर्णव, Yes, sir. यश, मानस, वेदांत, उर्वी। कम ऑन, 4-5 बच्चों का नाम लिया है, Yes, यश sir. तो बोलो यूज करके। अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 6, 3, 10, 5 बैलेंस हो गया रिएक्शन। Assume x mole of P4 reacted from the first reaction, बचा कितना? 0.25 minus x। अब स्टोइचियोमेट्री से इन दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। x can react with 3x to produce x. 0.25 minus x can react with 5 times of 0.25 minus x to give 0.25 minus x. So 1:3:1, 1:5:1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सिमिलर वे में, कुछ भी डिफरेंट नहीं है जैसा लास्ट किया था हमने। चलो, अब हमें x चाहिए। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करके 1 से इक्वेट कर दो। So moles of O2 is 1, 3x reacted from first reaction, 5 into 0.25 minus x reacted from the second reaction. So कितना बचा? 1.25 minus 2x equal to 1. x आ जाएगा 0.25 by 2, 0.125। ये आ गया x हमारे पास। अब x को रख दो यहाँ पर, 0.125 मोल्स इसके और 0.125 मोल्स इसके, दोनों के 0.125 आ रहेगा। क्लियर? अब हमें चाहिए इसका वेट। इसके मोलार वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसके मोलार वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेट ऑफ P4O6 0.125 which is 1/8 into P4 31 into 4 plus 16 into 6। कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। वेट ऑफ P4O10 0.125 31 into 4 plus 16 into 10। क्लियर है? अरे नहीं Yes, समझ में sir. आ रहा है। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया बताओ? सर आपने 0.25 माइनस एक्स क्यू लिखा और फिर वो 5 into 0.25 माइनस एक्स क्यू लिखा, वो देखो, वाला नहीं समझ। टोटल P4 है मेरे पास 0.25। Now I am saying out of 0.25 mole of P4, x mole has been reacted from the first reaction। तो बचा कितना? यदि 0.25 में से x रिएक्ट कर गया, क्या 0.25 माइनस x बचेगा? यस सर। तो वो रिएक्ट करा सेकंड रिएक्शन से 0.25 माइनस x। तो x रिएक्ट किया फर्स्ट रिएक्शन से, 0.25 माइनस x रिएक्ट किया सेकंड रिएक्शन से। अब ये रिएक्ट कर रहा है 1 कोफिशिएंट, 5 कोफिशिएंट, 1 कोफिशिएंट।
if 1 mole of P4O reacted, then how many moles of O2 reacted from second reaction? क्या इसके 5 moles react करेंगे क्या? Yes, sir. तो 0.25 minus x कितने से react करेगा? 1 can react with 5. 0.25 minus x can react with 5 times of 0.25 minus x. Yes, sir. 1 5 1 ये फिक्स हो गया. रेशो 1:5:1 ये नंबर फिक्स कर दिया हमने. और फिर भी नहीं समझ में आया तो एक काम करो, मोल मेथड लगा दो. Moles of P4 reacted from the second reaction, moles of O2 reacted from the second reaction, moles of P4O10 produced from the second reaction. ये रख दो तुम 0.25 minus x, तो ये दोनों इक्वल हो गए और ये आ जाएगा into 5, राइट? Yes, sir. तो जो भी स्टोइचियोमेट्री है उस रेशो में वो रिएक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट कर लिया हमने 1:5:1. E6 and E7 both are based on POSE, principle of atomic conservation. E6 and E7 जल्दी से ट्राई करो. नेक्स्ट 2 क्वेश्चन. E6.05 moles of LiH4 in ether solution was placed in a flask containing this. E6 is also good questions. ऐसा नहीं बहुत टफ है, बट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है. एक्चुअली अब जो हम कर रहे हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा तुम्हें फील होगा कि हाँ हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जा रहे हैं. अब तक तो जो टॉपिक्स हुए थे बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स थे, तो उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत हाई लेवल जा सकते हैं. और अभी भी ऐसा नहीं कि हम बहुत एकदम हाई लेवल पे जा रहे हैं. मतलब अभी तो हम एक्सरसाइज 1 पे ही जो फंडामेंटल में काउंट होती है. एक्सरसाइज 2 फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे आती है, मींस एडवांस लेवल के बीच में, नीट लेवल के आसपास. E6 lithium atom is conserved, इतना मुझे दे रखा है, and the percentage yield that I have to find out, LiL
AlH4 से सारा का सारा लिथियम Li AlHC12H27 O3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका 12.7 ग्राम है और इसका 0.05 मोल। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलो एक काम करो, उसके मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, वेट अपॉन मोलार वेट, लिथियम 7, एल्यूमिनियम 27, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 into 12, हाइड्रोजन 27, ऑक्सीजन 3 into 16। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले तो मोल्स निकालते हैं हम। सेवन प्लस 27। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तुम्हें घर पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं तो न्यूमेरिकल्स करनी। तो ये आ रहा है 1/20 मोल्स, 0.05 मोल्स आ रहा है। क्लियर? यस सर। सो 0.05 मोल्स आ गए। यदि हम यहाँ पे देखेंगे लिथियम 0.05 मोल्स, या 1 एटम, यहाँ पे 1 एटम, इसमें भी 0.05 मोल। देखो परसेंटेज पूछा है क्या, 0.05 मोल 100% लिथियम इसमें कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है क्या? यस सर। परसेंटेज इज 100%। बाय चांस मेरा यहाँ पर वैल्यू आता 0.04 लेट से, सो मोल्स ऑफ लिथियम मुझे मिलते 0.04, यहाँ पे 0.05, तो 0.04 ऑक्टेन एक्चुअली जो इतना बना है, थ्योरेटिकल 0.05 बनना चाहिए था इनटू 100, एक्चुअल ऑक्टेन अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100, तो इस केस में ये परसेंटेज हो जाता है। बट यहाँ पे भी 0.05 है, तो परसेंटेज इज 100%। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो E7 ट्राई करो। E7 में भी POSC का यूज है। E7, after reading the complete questions,
मुझे इतना समझ में आ रहा है, द होल फॉस्फोरस फ्रॉम NH to PO4 कन्वर्टिंग इनटू Mg to PO7। तो फॉस्फोरस पर यहाँ पर और यहाँ पे POC लगाओ और इसका वेट निकाल के बताओ। एक्सक्यूज पूरा मी सर, इतना क्लिक होना चाहिए, द होल फॉस्फोरस एटम इज कंजर्व। इवन वो बीच में इतने सारे रिएक्शन में मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन दे भी नहीं रखी कि प्रेडिक्ट कर सके। सो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने उसको सिर्फ एक ही स्टेप में रिप्रेजेंट किया है और 2 स्टेप सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी सर, यस सर वहाँ पे तो क्वेश्चन में Na प्लस आयन तो दे ही नहीं रखा है, तो NaH2PO4 बना कैसे, मतलब उससे वो कैसे बना? ये एक सॉल्ट है, जब इसको हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं दिस कन्वर्ट इनटू Na प्लस एंड H2PO4 माइनस। क्या H2PO4 माइनस दे रखा है? हाँ सर, वो यहाँ से आया है। हमें कैसे पता चला यहाँ से आया? क्वेश्चन में ही लास्ट में पूछ लिया है। A solution of H2PO4 minus yields this many gram of MgP2O7. What weight of NaH2PO4 was present? तो NaH2PO4 से ही तो ये बन रहा है, राइट? उससे ये बना और इससे ये बना। सर तो हमें समझ में कैसे आएगा कि हमें किससे क्या बना के POAC यूज करना है, अप्लाई करना है? इनिशियल जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी, मुझे इंफॉर्मेशन दी Mg2P2O7 और पूछा है NaH2PO4 कितना लगेगा, तो खत्म। NaH2PO4 इनिशियल है, ये फाइनल है। सारा का सारा फॉस्फोरस यहाँ पे जा रहा है, इतना क्वेश्चन में दे रखा है, राइट? यस POC ऑन फॉस्फोरस करके अब सभी का आंसर आना चाहिए। जैसे से आंसर आता है चेक बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तुम्हें किसी के मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट हो तो पूछ लेना। फॉस्फोरस 31, मैग्नीशियम 24, आंसर आया? Yes, sir. Answer from Smira. Waiting for some more. Weight, moles of this NaH2PO4 into 1 equal to moles of Mg2P2O7 into 2. 2 phosphorus atom, 1 phosphorus atom. इसका मोल्स क्या होंगे? वेट अपॉन मोलार वेट 23 प्लस 2 प्लस 31 प्लस 16 4 64 इक्वल टू इसका होगा 1.054 बाय 2 into 24 plus 31 into 2 plus 7 into 16
इंटू 2। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, इसको ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना और सॉल्व कर लेना। आया समझ में? यस सर। यस सर। ट्राई E8 नाउ। कितने क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो नेक्स्ट वीक होगा, मंडे ट्यूसडे जब भी होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो सर, इतने होमवर्क में दे दीजिए, इतने कर लेंगे। जो भी मिनिमम बोलेगा उतना मैं दे दूंगा, चलो, बट सभी को करना है। 15 to 20। शौनक, श्रेया, कितने क्वेश्चंस दे दूं मैं? सर 5 to अरे मोल वाले मॉड्यूल से ही होगा ना? इस मॉड्यूल से दूंगा क्वेश्चन तुम्हें। तो हमारे सर पास फिर टाइम कितना है? आज फ्राइडे, एक मिनट, आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मिनिमम 3 दिन तो है तुम्हारे पास। 3 दिन तक तो मेरा लेक्चर नहीं है, तो तुम कितना क्वेश्चन कर सकते हो केमिस्ट्री के, बताओ? सर मैथ्स का भी होमवर्क दिया है हमें। अरे मैं अपना पूछ रहा हूँ ना यार, मैं मैथ्स का मुझे क्या करना दिया है, तो क्या करूं 5 to बताओ? 10। मैं तुम्हारा होमवर्क केमिस्ट्री में कितना देना, तुम तो इतना बता दो मुझे बस। 15। 15, हाँ सर। चलो 15 क्वेश्चंस दे देता हूं मैं। एटीन कर दूं? 666 चलेगा सर। एक्सरसाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 up to question number 6. So first 6 question of part 1, part 2 and part 3. 6 plus 6 plus 6, 18 questions. Clear? यस सर। और इतना कर लेना, 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मैं एवरेज एक दिन में 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट तुम्हें एक ही दिन बैठोगे 18 क्वेश्चन के लिए, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ रफली कितना टाइम लगेगा। मतलब तुम अच्छे भी एफर्ट्स डालोगे, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार भी ट्राई करोगे, तो मैक्सिमम शायद 2 घंटे लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद। तो 2 आवर्स का होमवर्क है, 2.5 आवर्स से ज्यादा का होमवर्क नहीं, ठीक है? बीच में एक छुट्टी भी है जिसमें संडे। पिक्चर्स मैं सेंड कर देता हूं क्वेश्चन की। या कोई शेयर, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैं भूल जाऊंगा बाद में, कोई शेयर कर दो उस पे, असाइनमेंट वाले ग्रुप पे शेयर कर दो। कौन शेयर करेगा असाइनमेंट वाले ग्रुप सर पर? मैं नहीं हूँ असाइनमेंट वाले ग्रुप में। वो नहीं हो तुम, आओ उस पे, मुझे अभी मैसेज करना अपने नंबर से, उसका लिंक ज्वाइन करने का सेंड करता हूँ तुम्हें। कौन सेंड करेगा? हैंड रेज करो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के पिक्चर्स। कम ऑन यार, मतलब कोई तो हैंड रेज करो, कौन सेंड कर सकता है? 3 पिक्चर्स क्लिक करके सेंड करना है। ईशानी, क्लियर? ईशानी सेंड कर देना असाइनमेंट वाले ग्रुप पर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के पिक्चर्स, कंप्लीट पिक्चर भेज देना तुम तीनों के, बट होमवर्क 6 तक ही रहेगा, ठीक है? सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं भी।